Good morning, students. I hope you're all fine. Take out your science books and write date and day on the new page, and the page number is 34. On page number 34, write date and day 24/7/2020. Write classwork and the day is Saturday. Lesson number 7, more about animals. Okay, I'm going to read it for you, and you also have to read the difficult words with me. Allah has created, underline created. Created means पैदा किया या बनाया. Create means बनाया. All the animals. Many of them are useful for us. Underline useful means फायदेमंद. It is very interesting. Underline interesting means दिलचस्प. To learn about them. Insects, birds and fish are also animals. Some of them live on land. Some of them live in water. Did you observe what the animals do all the day? Okay, difficult words are created, useful, interesting, observe. Now come to next page. Insects. Insects are small animals. They have 6 legs. Underline 6. Most of them have wings and can fly. Underline wings. Most of them have feelers, underline feelers, on their heads. They can feel with them like we feel with our hands. Some insects have a pipe, underline pipe, in their mouths instead of teeth. They suck our blood or nectar of flowers with it. Nectar क्या होता है? Sugary substance, and suck means किसी चीज़ को, जैसे हम जूस को suck करें, यानी उस जूस को suck means चूसना. When you drink something, just like you drink something with a straw, underline straw. Honeybee, grasshopper, mosquito and ladybird, cockroach. The world's heaviest insect lives in Africa, underline Africa. It can weigh over 100 gram, underline 100 gram. Its name is Goliath beetle, underline Goliath beetle. What's the name of the insect? Goliath beetle. Goliath beetle. Most of the insects like bees have 4 wings, underline 4, but flies have only 2, underline 2. Insects breathe through tiny holes present along the sides of their body. So difficult words of this page are 6, wings, feelers, pipe, suck, nectar, straw, honeybee, grasshopper, mosquito and ladybird, cockroach, Africa, heaviest, Goliath beetle, 4, 2, tiny holes. Now come to next page. Birds. Birds have feathers on their bodies, underline feathers. They have very light bodies and strong muscles. They have wings instead of hands. These wings help them in flying. But some birds cannot fly. Most of the birds make nests in trees. The female birds lay eggs in the nest. Baby birds hatch. Hatch means अंडे से निकलना. Hatch means अंडे से निकलना. Out of these eggs. Pelican, pelican, eagle, vulture, crow, sparrow, parrot. Pelican, vulture, eagle, crow, parrot, sparrow. Ostrich, kiwi, penguin. Ostrich, kiwi, penguin. Birds that cannot fly. Difficult words of this page are feathers, instead, hatch, pelican, vulture, eagle, crow, parrot, sparrow, ostrich, kiwi, penguin. Now come to next page. Fish and other water animals. Many animals live in water. Some live in ponds, underline ponds, तालाब. Ponds क्या होते हैं? तालाब. Lakes and rivers. Rivers क्या होते हैं? दरिया. Ponds, तालाब, and lakes, नदी. Others live in salty water of the sea. Sea क्या होता है? समंदर.
dolphin, lobster, octopus, crab, seahorse, shark, fish. Some water animals like fish breathe through their gills. Underline gills. It helps fishes to absorb, underline absorb, oxygen present in the water. They breathe inside the water. They breathe air dissolved in water. Dissolved means इसके अंदर mix है यानी हल. Dissolved. Others such as whales have to come up to the surface of water to breathe. Insects are small animals with 6 legs. Birds have feathers on their bodies. Most of them can fly. Many kinds of animals live in water. Difficult words are ponds, lakes, rivers, seas, dolphin, lobster, octopus, crab, seahorse, shark, fish. Gills, absorb means just करना, dissolved हल, whales, surface सतह, breathe सांस. ओके, अब मैं जा रही हूँ इस यूनिट को एक्सप्लेन करने. सो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मोर अबाउट एनिमल्स. यानी पिछले चैप्टर में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था. अब उन्होंने कहा है मज़ीद हम और एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो सबसे पहले आपको देख रहे होंगे कि आपको नीचे पानी दिखाया गया है. उस पानी में जो एनिमल्स रहते हैं वाटर में वो दिखाए गए हैं, जैसे शार्क, ऑक्टोपस, ठीक है, टर्टल. और फिर आपके पास वो इंसेक्ट्स दिखाए गए हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, जिस तरह आपके पास है डिफरेंट एनिमल्स दिखाए गए हैं. और फिर वो एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं, बर्ड्स जो कि क्या कर रही हैं, फ्लाई कर रही हैं. ठीक है. सो उन्होंने कहा है अल्लाह हैज़ क्रिएटेड ऑल द एनिमल्स. क्रिएट मीन्स पैदा किया है. अल्लाह ताला ने तमाम इंसान जानवरों को क्या किया है, पैदा किया है या बनाया है. बहुत सारे एनिमल्स हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दैम. हम बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके बारे में हम जानने में इंटरेस्टेड हैं, यानी हम दिलचस्पी रखते हैं. अब जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, बर्ड्स जैसा कि जो हवा में फ्लाई कर रहे हैं. ठीक है. एंड फिश, ये सारे क्या हैं, एनिमल्स. कुछ एनिमल्स क्या है, ज़मीन पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स पानी में रह रहे हैं. डिड यू ऑब्जर्व व्हाट द एनिमल्स डू ऑल द डे? उन्होंने क्या है क्या कभी आपने कभी किसी एनिमल को या कोई भी एक एनिमल ले लें, आपने उसको ऑब्जर्व किया है कि ये करता क्या है, यानी इसके पूरे दिन क्या एक्टिविटी है. फॉर एग्जांपल आपके घर में अगर पैरट्स हैं, कोई भी पेट एनिमल है, रैबिट, तो आप उसको ऑब्जर्व करें या महसूस करें कि वो पूरा दिन क्या करते हैं. ठीक है. या तो वो सोएंगे या वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमेंगे. ठीक है. तो उन्होंने कहा है वो पूरा दिन क्या करते हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. अब जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स का काम क्या है, नेस्ट पे बैठना या फ्लाई करना. ठीक है. खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना. आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े. ठीक है. क्या है, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े. इसके साथ जो मेन थिंग्स हैं ये आप मेन ऊपर लिख लें. फीलर्स, टाइनी होल्स, पाइप इन माउथ. यानी इंसेक्ट्स की ख़ास बात क्या है, इनके पास फीलर्स हैं, टाइनी होल्स हैं और क्या है, पाइप इन माउथ. इंसेक्ट्स क्या होते हैं, आर स्मॉल एनिमल्स, यानी ये छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं. जिस तरह फॉर एग्जांपल मक्खी ले लें, ग्रास हॉपर, लेडी बर्ड एंड चूंटियाँ जो होती हैं. ठीक है. ये सारे कौन से एनिमल्स हैं, बहुत छोटे हैं. और इनकी लेग्स कितनी होती हैं, 6. कितनी टांगें होती हैं उनकी, 6. 1 2 3 4 5 6. कितनी लेग्स होती हैं इनकी, 6. और इन इंसेक्ट्स के पास क्या मौजूद है, विंग्स. विंग्स मीन्स पर, जिसके ज़रिए वो उड़ती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप बी यानी मक्खी अगर आप देखते हैं तो इनके पास क्या मौजूद होते हैं, पर, जिसके ज़रिए विंग्स, जिसके ज़रिए वो फ्लाई करते हैं. अब उन्होंने कहा है कि इनके सरों पर अगर आप कोई भी कीड़ा देख लें, इंसेक्ट्स देख लें, तो ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर इनके हेड्स में क्या मौजूद होते हैं, फीलर्स. क्या मौजूद होते हैं, फीलर्स, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, फील यानी महसूस करते हैं. ठीक है. अगर आप देखें किसी भी आप इंसेक्ट्स कीड़े को आप फ़ौरन दूर से भी अगर पकड़ने की कोशिश करें तो एकदम वो क्या कर जाते हैं, फ्लाई. क्यों? क्योंकि वो क्या कर लेते हैं, फील कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फीलर्स. फीलर्स उनके कहाँ मौजूद है, उनके हेड्स में. ठीक है. यू कैन फील विद दैम लाइक वी विद आवर हैंड. जिस तरह हम किसी भी चीज़ को फील करते हैं कि ये ठंडी है, ये गर्म, इस तरह वो भी फील करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फीलर्स. अब उन्होंने कहा है कि अब उनके माउथ की बात करें. ठीक है. तो हमारा माउथ है जिसके ज़रिए हम खाना खाते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स के पास मौजूद है, इंसेक्ट्स हैव अ पाइप इन देयर माउथ. उनके मुंह के आगे क्या मौजूद होता है, पाइप. ठीक है. क्या मौजूद होता है, पाइप.
जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, अगर वो मच्छर यानी मॉस्किटो है तो वो हमारा खून चूसता है, ठीक है। वो हमारी बॉडी पे इस अपने माउथ के ज़रिए, जिसके आगे पाइप है, उसके ज़रिए हमें स्टक करता है और हमारा क्या चूसता है, खून सक करता है हमारा ब्लड। या वो इंसेक्ट्स, अगर आपने देखा हो कि अगर आप पार्क पे जाएं तो अक्सर फ्लावर्स के ऊपर बहुत सारी हनी बीज होती हैं, ठीक है। उनका काम क्या होता है कि वो फ्लावर्स के ऊपर क्या मौजूद है, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, शुगरी सब्सटेंस। वो उसको अपने पाइप के ज़रिए सक करती हैं और फिर अपना खाना बनाती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इंसेक्ट्स के माउथ के आगे क्या मौजूद है, एक पाइप यानी ट्यूब, ठीक है, जिसके ज़रिए अगर वो ब्लड लेते हैं तो वो हमारी बॉडी से करते हैं सक ब्लड। अगर वो फ्लावर्स हैं तो फ्लावर से वो क्या लेते हैं, नेक्टर, उसको सक करते हैं। सक मीन्स चूसना। विद इट, जिस तरह अगर आप कोई भी जूस पी रहे हैं तो आप उस जूस को किसके ज़रिए पिए, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ, ठीक है। स्ट्रॉ के ज़रिए आप उस जूस को पी रहे हैं। इस तरह अगर उन्होंने हमारा ब्लड लेना है या उन्होंने नेक्टर लेना है तो वो किसके ज़रिए लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ। ये डिफरेंट हनी बीज हैं। ये हनी बी है, शहद की मक्खी, ग्रास हॉपर, अक्सर दरख्तों में मौजूद होता है। मच्छर आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, ठीक है। तो आपको लगता है कि मच्छर हमें काट रहा है, असल में मच्छर काटता नहीं है, बल्कि वो अपने माउथ यानी पाइप के ज़रिए हमें हिट करता है और हमारा खून चूसता है। एंड चूंटी, लेडी बर्ड एंड कॉकरोच। कॉकरोच अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यानी क्या खास बात है इंसेक्ट्स, कीड़ों के मकोड़ों के बारे में। द वर्ल्ड्स हैवीएस्ट इंसेक्ट लिव्स इन अफ्रीका। उन्होंने कहा है सबसे हैवीएस्ट मीन्स पूरी दुनिया में सबसे जो हैवी तरीन इंसेक्ट है, ठीक है, वो कहाँ मौजूद है, अफ्रीका। अफ्रीका हमारा क्या है, एक कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो दुनिया में सबसे हैवीएस्ट यानी सबसे भारी तरीन, इसका वज़न सबसे ज़्यादा है कीड़े मकोड़ों में, वो अफ्रीका में है। उसका वज़न कितना है, 100 ग्राम, और उसका नेम क्या है, गॉलियत बीटल। गॉलियत बीटल क्या है, सब दुनिया का सबसे हैवीएस्ट इंसेक्ट है, यानी सबसे साइज़ में क्या है, बड़ा, यानी उसका वज़न क्या है, ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीड़े जैसा कि बीज यानी मक्खियाँ, उनके पर कितने होते हैं, 4, ठीक है। कितने पर होते हैं, 4। लेकिन के फ्लाइज जैसे कि मच्छर या मक्खियाँ वगैरह, इनके कितने होते हैं, ओनली 2 पर होते हैं विंग्स। इंसेक्ट्स, अब सांस किसके ज़रिए लेते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। हम नोज़ के ज़रिए सांस लेते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स की खास बात क्या है कि उनकी बॉडी के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, होल्स। होल्स मीन्स छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए वो क्या लेते हैं, सांस। अब हम कहाँ किसके ज़रिए सांस ले रहे हैं, नोज़। लेकिन इंसेक्ट्स की बॉडी पे क्या मौजूद है, स्मॉल होल्स यानी छोटे छोटे सुराख, जिसके ज़रिए वो लोग क्या लेते हैं, सांस। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स। टाइनी मीन्स छोटे सुराख, जो कि उनकी कहाँ मौजूद है, उनकी बॉडी पे। सो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की खास बात क्या है कि वो फील करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फीलर्स, महसूस करते हैं फीलर्स के ज़रिए। सांस किसके ज़रिए लेते हैं, उनकी बॉडी पे मौजूद है टाइनी हॉल्स, जिसके ज़रिए वह सांस लेते हैं। उनके माउथ के आगे, मुंह के आगे एक पाइप लगा हुआ है, जिसके ज़रिए वह सक करते हैं ब्लड या नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। और सबसे हैवीएस्ट इंसेक्ट का नाम क्या है, गॉलियत बीटल। दुनिया का सबसे हैवीएस्ट इंसेक्ट कौन सा है, गॉलियत बीटल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स मीन्स परिंदों के बारे में। आप लोग घर में भी बहुत सारे बर्ड्स रखते हैं, पैरट्स रखते हैं कुछ लोग, ठीक है। ये आप लोगों ने क्रो, कौवे देखे होंगे, ईगल देखी होंगी, तोते देखे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है बर्ड्स की खास बात क्या है कि वो क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं। बर्ड्स की खास बात क्या है, वो क्या करते हैं, फ्लाई। और फ्लाई करने के लिए अल्लाह ताला ने उनको क्या दिए हैं, फैदर्स। तो ख़ास बात क्या है, बर्ड्स के पास फैदर्स हैं, उनकी बॉडीज़ क्या है, उनका वज़न कम होता है, ठीक है। और ले एग्स, और वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। बर्ड्स हैव फैदर्स ऑन देयर बॉडी। आप कोई भी बर्ड देख लें, चिड़िया देख लें, तोता देख लें, ठीक है, क्रो देख लें, उनकी बॉडी पे क्या मौजूद है, फैदर्स यानी पर मौजूद है। ये क्यों मौजूद है, ये बॉडी इनको उड़ने में, फ्लाई करने में मदद देते हैं। दे हैव वेरी लाइट बॉडीज़। अगर आप किसी भी पैरट को हाथ में उठाएं तो उसका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इनकी बॉडीज़ क्या होती हैं, लाइट। और इनकी मसल्स क्या हैं, जो बॉडी को मूव करने में मदद देती हैं। तो इनकी मसल्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो इनकी आर्म और चेस्ट वाली मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि इसके ज़रिए इन्होंने क्या करना होता है, फ्लाई करना होता है। दे हैव विंग्स इंस्टेड ऑफ हैंड। जैसे हमारे पास हाथ मौजूद हैं, लेकिन इनके पास क्या मौजूद है, विंग्स यानी पर, जिसके ज़रिए वो उड़ते हैं। दीज विंग्स यानी ये विंग्स इन्हें उड़ने में मदद देते हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी हैं, ठीक है,
वो फ्लाई नहीं कर सकती, वो नहीं उड़ती, बेशक उनके पास फर मौजूद है, ठीक है। ऑस्ट्रिच, अगर आप अयूब पार्क कभी गए हो तो वहाँ पर ऑस्ट्रिच अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो एक बर्ड है, ठीक है, लेकिन उसके पास फर भी है, लेकिन विंग्स भी हैं, लेकिन वो फिर भी फ्लाई नहीं करते। द फीमेल बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट। अब फीमेल बर्ड्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं कहाँ पर, ले एग्स मीन्स अंडे देते हैं कहाँ पर, नेस्ट मीन्स घोंसलों में, ठीक है। अगर आप किसी भी दरख्त में देखें तो उसमें लाजमी चिड़िया का एक घोंसला मौजूद होता है जिसमें वो अपने अंडे रखते हैं, ठीक है। और फिर जब वो अपने एग्स दे देते हैं तो उस पर मेल या फीमेल बर्ड उसके ऊपर बैठते हैं, और जब उसमें से अंडे में से बेबीज़ निकल आते हैं तब वो उनका क्या रखते हैं, ध्यान, और जब वो बेबी बर्ड्स बड़े हो जाते हैं तो वो उस घोंसले को छोड़ देते हैं, ठीक है। पेलिकन है, पेलिकन क्या है, स्मॉल फिशेस खाती है, ठीक है। ईगल जो है वो दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं। वोल्चर भी क्या है, ईगल यानी दूसरे एनिमल्स का अटैक करते हैं। क्रो है, स्पैरो चिड़िया, ये जो है वो सारी दोनों सीड्स खाते हैं, पैरट, और ये भी क्या है जी, क्रेन, ठीक है। बर्ड्स, वो बर्ड जो कि फ्लाई नहीं करती, अगर आपने ऑस्ट्रिच देखा हो, ठीक है, तो वो एक क्या है, बर्ड, ये फ्लाई नहीं करती। कीवी फ्लाई नहीं करता, एंड पेंगुइन भी फ्लाई नहीं करते। आज हमने किसके बारे में पढ़ा, बर्ड्स। बर्ड्स यानी परिंदे। इनकी ख़ास बात क्या है कि इनके पास क्या मौजूद है, फैदर्स, जिसके ज़रिए वो फ्लाई करते हैं। इनकी बॉडीज़ क्या है, लाइट, और इनकी मसल्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग। वो क्या देते हैं, एग्स देते हैं, कहाँ पर, घोंसलों में, ठीक है। और बेबी बर्ड्स उसमें से निकलते हैं जब एग क्या होते हैं, टूटते हैं। हैच मीन्स अंडे से निकलना। कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं करती, जैसा कि वोल्चर एंड कीवी, ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, इनके नाम अच्छे से याद कर लें, ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन। अब आ जाते हैं फ़िश, यानी वो उन एनिमल्स, पहले हमने जो पढ़ा आसमान में जो होते हैं, यानी जो हवा में मौजूद होते हैं, ठीक है, फ्लाई कर सकते हैं। अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो पानी में रहते हैं। फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, सम लिव इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, सम लिव इन द सॉल्टी वाटर ऑफ द सी। अब उन्होंने कहा है कि कुछ एनिमल्स, यानी उन एनिमल्स के बारे में बात पढ़ रहे हैं जो कि पानी में मौजूद हैं। अब पानी भी डिफरेंट मौजूद है, जैसा कि उन्होंने कहा बहुत सारे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल डॉल्फिन, लॉबस्टर, ऑक्टोपस, क्रैब, सी हॉर्स, शार्क, फिशेस, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं, पॉन्ड्स। पॉन्ड्स क्या होता है, तालाब, ठीक है, यानी वो इतना मौजूद नहीं होता बड़े साइज़ का, उसके इर्द गिर्द क्या होती है, जिस तरह ये तालाब है, इसके इर्द गिर्द क्या है, पानी ही पानी, फॉर एग्जांपल ज़मीन ही ज़मीन होती है और बीच में क्या होता है, पानी मौजूद होता है, और ये इतना गहरा नहीं होता। लेक्स क्या होता है कि वो थोड़े बड़े साइज़ का होता है और उसके चारों तरफ क्या होती है, ज़मीन ही ज़मीन होती है, और ये पॉन्ड से क्या होता है, ज़्यादा गहरा, डीप होता है। रिवर्स भी क्या है, दरिया है, ठीक है। उन्होंने कहा कुछ एनिमल्स यहाँ रहते हैं और कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं, समंदर में, और सी का पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं कि इनके पास क्या मौजूद है, ठीक है, कि पानी में रहने के लिए अल्लाह ताला ने इनका जिस्म, इनकी बॉडी कैसे बनाई है। सम एनिमल्स, वाटर एनिमल्स लाइक फिश, ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। इनको सांस लेने, यानी हम सांस ले रहे हैं विद द हेल्प नोज, ठीक है, लेकिन ये किसके ज़रिए सांस लेते हैं, गिल्स के ज़रिए। किसके ज़रिए, गिल्स के ज़रिए। गिल्स के ज़रिए फिशेस क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। अब पानी, अब हम अंदर क्या लेके जा रहे हैं, लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन अंदर लेके जाती है और बाहर क्या निकालती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन्होंने कहा है कि पानी में से ये ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब यानी जस्ट कर लेते हैं, एंड दे ब्रीथ इनसाइड द वाटर, और पानी के ज़रिए वह पानी में ही वो सांस ले सकते हैं। द ब्रीथ एयर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, उन्होंने कहा है, ओके सॉरी, दे ब्रीथ इनसाइड द वाटर, वो पानी के अंदर सांस लेते हैं। दे ब्रीथ एयर डिजॉल्व इन वाटर, वो हवा जो पानी के अंदर मिक्स होती है उसके ज़रिए वो क्या लेते हैं, सांस, क्योंकि सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए, हवा। अदर सच एज व्हेल्स हैव टू कम अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ। अब उन्होंने कहा है, अब जाहिर सी बात है, हम अगर पानी में स्विम करें तो हम ज़्यादा देर पानी में स्विम नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए हमें पानी से बाहर आना पड़ता है, फिर हम सांस लेते हैं और फिर पानी में वापस चले जाते हैं। इसी तरह ये जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, इसमें उन्होंने कहा है वेल की बात करें तो वो सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आती है, फिर वो सांस लेती है अच्छे से और फिर वो कहाँ चली जाती है, पानी के अंदर। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, फिशेस, यानी जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो सांस किसके ज़रिए ले रहे हैं, गिल्स के ज़रिए, ठीक है, और इसके जो वाटर में ऑक्सीजन और हवा मौजूद होती है इसके ज़रिए वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। रिमेंबर, पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स वो छोटे एनिमल्स हैं जिनकी 6 लेग्स हैं, उनके टाइनी होल्स हैं जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं।
ठीक है। और सबसे हैवीएस्ट इंसेक्ट गॉलियथ बीटल है, इसका नाम अच्छे से याद करना है। ओके और इनके पास पाइप होता है जिसके ज़रिए वो सक करते हैं, ठीक है। और अगला हमने पढ़ा बर्ड्स के पास क्या है, फैदर, जिसके ज़रिए वो फ्लाई करते हैं। कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं करती जैसा कि कीवी, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन। बहुत सारे एनिमल जो है वो वाटर में रहते हैं और वो किसके ज़रिए सांस लेते हैं, थ्रू गिल्स, ठीक है। सो ये चैप्टर आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।